Good morning, students. Today I am continuing with my chapter on solution, and in this chapter we are going to start with a very important topic, that is colligative properties. Now, how we define colligative properties? We say that colligative properties are the properties of a dilute solution that depend upon number of particles of solute present in the solution, but do not depend upon nature of the solute. क्या मतलब हुआ कि वो वाली प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे जो कि डिपेंड करती हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर, कि हमने कितने पार्टिकल्स डाले हैं, लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और अगर उसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला है तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो सेम होगी अगर मैं उसमें 1 मोल ऑफ सुक्रोज डालता हूं। तो चाहे मैं ग्लूकोज डालूं या सुक्रोज डालूं, दोनों का चूंकि 1 मोल डाला मतलब पार्टिकल्स इक्वल हो गए। अगर पार्टिकल्स इक्वल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहेंगी। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, and the last one is depression in freezing point. So today we will start with relative lowering of vapor pressure, and all of you are aware of this fact that relative lowering of vapor pressure से हमारा क्या मतलब है। हमने ये कहा था कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसको अगर हम सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज नोन एज रॉल्ड्स लॉ। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि lowering of vapor pressure with respect to the vapor pressure of a solvent। अगर P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और PS जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था और हमें ये पता है PS वुड बी लेस देन P नॉट। हमने कहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगी? P नॉट माइनस PS। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बन जाएगी? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट मींस lowering of vapor pressure with respect to the vapor pressure of pure solvent. Now we have derived this relation for Rod's law for a solution containing non-volatile solute, and we know that the vapor pressure lowering with respect to the vapor pressure of pure solvent is given by P naught minus PS upon P naught is equal to X2, where X2 is the mole fraction of solute। तो आपको याद होगा मैंने 3 रिलेशन के बारे में कराए थे, P नॉट माइनस P नॉट N2 अपॉन N1 प्लस N2 इफ द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
P naught minus Ps upon P naught equal to approximately equal to N2 upon N1 for dilute solutions। और मैंने आपको बताया था लेस देन 5% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और P naught minus Ps upon Ps अगर कर दें तो फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है, एंड दिस इज आल्सो फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो वी कैन डिटरमिन द वेपर प्रेशर So we can determine the vapor pressure lowering of a solution by using these relationships. The relative lowering of vapor pressure of the solution by using this relation, where P naught minus Ps by P naught is called a relative lowering of vapor pressure. It is equal to the mole fraction of the solute. And if we expand this mole fraction, that is equal to N2 over N1 plus N2. Since N2 is very small for dilute solution, it can be neglected. The solution formula can be modified to be equal to P naught minus Ps upon P naught approximately equal to N2 upon N1. P naught minus Ps upon Ps अगर कर लें P naught की जगह, तो ये relative loading of vapor pressure नहीं है, क्योंकि relative loading of vapor pressure का क्या फॉर्मूला था? P naught minus Ps upon P naught. This is P naught minus Ps upon Ps. पर ये वाला फॉर्मूला हम सब जगह पे यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू dilute solution as well as non dilute solution. Now how we can say that RLVP is a colligative property. Relative lowering of vapor pressure is a colligative property. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप देख सकते हो P naught minus Ps upon P naught, जिसको कि RLVP कहते हो, that is equal to X2, means RLVP is equal to N2 upon N1 plus N2. So RLVP is directly proportional to, तो हमने क्या कहा था? Any property of the dilute solution that depends upon the number of moles or number of particles of the solute is known as a colligative property. So relative lowering of vapor pressure is our colligative property because it depends upon the number of moles of the solute. एक और एप्लीकेशन जो कि colligative property के लिए हम यूज करते हैं, मान लो मैंने एक अननोन solute लिया, आपको एक पाउडर दिया गया और आपको बताया गया कि बताओ ये वाला जो पाउडर है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ colligative property। तो आप क्या करोगे, उस कंपाउंड की हेल्प से एक सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लोगे, उसमें डिसॉल्व करके आप उसका एक सॉल्यूशन बनाओ, देन यू डिटरमिन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आप उनका डिफरेंस लेके आप मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, वी कैन डिटरमिन the molecular mass of an unknown solute। तो आप क्या करोगे, P naught minus Ps upon P naught लिखा हुआ है, N2 की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 upon M2। N2 is number of moles of the solute, given mass over molecular mass। नीचे M1 था, W1 M1 plus W2 by M। और if you consider this solution to be equal to dilute solution, जैसा कि हमने कहा है कि ज्यादातर colligative property जो है वो applicable होती है अगर solution dilute हो, तो फिर ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, P naught minus Ps upon P naught approximately equal to N2 upon N1, that means which is equal to W2 upon M2 upon W1 upon M1। So we can determine M2। So molecular mass of an unknown solute can be determined by using this formula, and even we can use simplified formula, but that will not be, अगर तो आपको relative loading का वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर आपको इनिशियल वेपर प्रेशर और PS दिया गया है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, और हम अगर यहाँ देखें तो number of particles पे डिपेंड कर रही है relative loading of vapor pressure। So it is a colligative property and it helps to determine the molecular mass of an unknown solute. Now
क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम है ओस्टवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड। इस मेथड को हम ट्रांसपीरेशन मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड में हम करेंगे क्या, वी विल टेक अवर सॉल्यूशन and we will pass it through a set of bulbs। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे और उनको एक टेस्ट ट्यूब्स में या मेयर्ड वेड ट्यूब्स में हम उसको रखेंगे और हम ड्राई एयर उसमें से पास करेंगे। जैसे जैसे ड्राई एयर पास करती जाएगी वो अपने मटेरियल में से वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर। और जितनी वेपर्स जाएंगी उससे क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ सॉल्यूशन बल्ब्स ले लेंगे। दो सेट ट्यूब्स के हमने लेने हैं, 3-3 का सेट है और उनको एक थर्मोस्टेट पे रखना है ताकि टेम्परेचर उनका सेम रहे। इन सेट ऑफ बल्ब्स में या ट्यूब्स में हमने सॉल्यूशन डाल देना। तो हम कहेंगे ए सेट ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग सॉल्यूशन। इसी तरह का एक और सेट लेना है हमने, इसी तरह का हमें एक सेट लेना है और यहां पे हमें फिर से थर्मोस्टेट हमने रखा है ताकि टेम्परेचर सेम रहे और इसमें हमने ले लेना है इस सेट ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग सॉल्वेंट। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको एक ट्यूब के साथ जोड़ना है। ये ट्यूब नीचे को एक्सटेंड करेगी और यहां से ये नेक्स्ट बल्ब में चली जाएगी, फिर नीचे को एक्सटेंड करेगी, यहां से ये नेक्स्ट बल्ब में चली जाएगी, फिर नीचे को एक्सटेंड करेगी, यहां से ये नेक्स्ट बल्ब में चली जाएगी और नीचे सॉल्यूशन में एक्सटेंड करेगी। सिमिलरली यहां से ये नेक्स्ट बल्ब में चली जाएगी और इस तरह से ये मूव कर दी जाएगी। अब होगा क्या, यहां से हम ड्राई एयर पास करेंगे। अब चूंकि इन बल्ब्स में क्या है, सॉल्यूशन, तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्टिसिपेट करेगा जिसको पीएस कहते हैं। यहां पे क्या है, सॉल्वेंट, तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करेगा जिसको कि हम पी नॉट कहते हैं। हमने क्या किया, ड्राई एयर को इस सॉल्यूशन वाले बल्ब में से पास किया। अब ड्राई एयर में तो कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है, सॉल्यूशन वाले जो हमारे बल्ब्स हैं उनके अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा है उसका वेपर प्रेशर जितना भी होगा वो अपनी वेपर्स से इस एयर को सैचुरेट कर देंगे, क्योंकि एयर के पास कोई वेपर्स नहीं है लेकिन सॉल्यूशन के वेपर्स जो हैं वो निकल रहे हैं ड्यू टू देयर वेपर प्रेशर। तो वो वेपर्स उसे ड्राई एयर के साथ मिल जाएंगे और ड्राई एयर क्योंकि कंटिन्यूअसली हम फ्लो कर रहे हैं वो अपने साथ उन वेपर्स को उड़ा के आगे ले जाएगा। उससे क्या होगा, इन बल्ब्स का थोड़ा नुकसान होगा, मैटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल जाएगा। और हम जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर में चाहे वो गैस हो चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो उनका मास होता है। तो वो जो वेपर जब निकल जाएंगे तो इन बल्ब्स का मास कम हो जाएगा। और लेट
द लॉस ऑफ मास इन सॉल्यूशन बल्ब्स, वो आ गया मान लो W, इसको W ना माने हम X मान लेते हैं, X ग्राम्स। अब यहां से जब वेपर्स बाहर निकलेंगी ड्राई एयर के साथ, दिस एयर इज सैचुरेटेड विद सॉल्यूशन वेपर्स। वो जो एयर पहले सेट ऑफ बल्ब में से बाहर निकली है वो अपने साथ क्या ले गई है, वेपर्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन बल्ब्स डिक्रीज होगा, जितना लॉस होगा उसको हमने x मान लिया। अब क्या हुआ, यहां से जो एयर आगे जा रही है, अब ये एयर ड्राई एयर नहीं रही, अब इसके पास क्या है, ड्राई एयर तो थी ये, साथ में इसने अपने साथ क्या मिला लिए हैं, सॉल्यूशन के वेपर्स। वो वाले वेपर जब यहां जाएंगे तो यहां पे कौन उसकी वेट कर रहा है, सॉल्वेंट। हम जानते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा उतने वेपर्स इनको और मिल जाएंगे। तो क्या होगा, यहां पे भी लॉस ऑफ मास होगा, लॉस ऑफ मास इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट बल्ब्स, दैट इज इक्वल टू y ग्राम। अब यहां से जो वेपर्स बाहर आएंगे, ये जो एयर है दैट इज सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट, इसके पास मैक्सिमम सॉल्वेंट के वेपर्स आ चुके हैं। अब ये याद है ना, चाहे वो बल्ब सॉल्यूशन के थे, वेपर तो सॉल्वेंट की जाने हैं क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होता है। हाँ, यहाँ पे कम वेपर आए थे, जितने रह गए वो यहां से मिल गए, अब टोटल मैक्सिमम इस पे आ गए। कुछ एक्सपेरिमेंट तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते, लेकिन अगर हम डील कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन से तो हमें एक एक्सटेंशन बनाना पड़ता है इसके आगे हम एक और ट्यूब लगाते हैं, इस तरह की वेड ट्यूब होती है वो भी, उसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल देना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने इसमें डाल देना है। लेकिन जैसे ये वाटर अगर एक्वा सॉल्यूशन हो, नहीं तो बात यही खत्म कर देनी है, एक्वा सॉल्यूशन हो तो ये बात। अब जब ये एयर विद वाटर वेपर इधर जाएगी तो वाटर को कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हैज अफिनिटी फॉर वाटर, वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, वो मान लो Z ग्राम हो गया। तो क्या हुआ, ड्राई एयर जब यहां से पास की, मास कम हुआ, वो x के इक्वल है, वो जब यहां गई तो सॉल्वेंट के वेपर भी चले गए, यहां y हो गया। अगर वो एक्वा सॉल्यूशन है तो तीसरी ट्यूब भी लगा लेंगे, उसका मास गेन हो जाएगा, वो Z हो गया। अब हम कह सकते हैं लॉस ऑफ मास इन सॉल्यूशन बल्ब दैट इज इक्वल टू x। अब वो कितना लॉस होगा, जितना वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट x वुड बी प्रोपोर्शनल टू, या PS would be proportional to x, क्योंकि जितने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उतने ही वेपर्स बनेंगे, तो वो PS जो है वो x के प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ लॉस ऑफ मास इन सॉल्वेंट बल्ब्स, वो हमने y कह दिया। अब y कितना होगा, यहां पे PS वाले वेपर तो आ रहे हैं और यहां से P0 वाले जा रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं P0 माइनस PS इज प्रोपोर्शनल टू y। अगर दो चीज प्रोपोर्शनल हो तो प्रोपोर्शनल की रेशियो उनकी रेशियो हो जाती है, तो हम कह सकते हैं डिवाइड 2/1 P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू y बाय x। सॉरी, P0 माइनस PS अपॉन, अभी डिवाइड नहीं करना, अभी हमें चाहिए तो हमने क्या कहा कि PS इज प्रोपोर्शनल टू x, P0 माइनस PS इज इक्वल टू y। हमें तो P0 चाहिए, देयरफॉर P0 विल बी प्रोपोर्शनल टू x प्लस y। आप चेक कर सकते हो, अगर x और y को ऐड कर दें, x क्या था PS, y क्या था P0 माइनस PS, ऐड करेंगे तो वो P0 ही बन जाएगा। इसको इक्वेशन 3 लिख दो।
now divide equation number 2 by 3. You will get P naught minus Ps upon P naught equal to y upon x plus y. This is how you can experimentally determine the value of relative loading of vapor pressure. अगर आपके पास aqueous solution है, for aqueous solution, तो जो Z है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? Z कितने वेपर्स एब्जॉर्ब करेगा? जो सारे आए हैं, सारे कौन से हैं? P naught वाले. तब Z is equal to P naught. Therefore P naught minus Ps upon P naught अगर निकालना, P naught minus Ps upon Ps कितना था? Y, और P naught कितना है? Z. तो हम कह देंगे for aqueous solution we can have Y upon Z. तो ओस्टवार्ड वॉकर ने डायनामिक मेथड में क्या किया? ड्राई एयर पास की बल्ब में से मास का लॉस हुआ, x नोट कर लिया, वो सैचुरेटेड वाली गई दूसरे में, मास का लॉस हुआ, y नोट कर लिया. अगर पानी वाली सॉल्यूशन है तो मास गेन का नोट कर लिया. x y z पता लग गए. x प्रोपोर्शनल है ps के, y प्रोपोर्शनल है p नॉट माइनस ps के. हमें चाहिए p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट, तो हमने x और y को ऐड किया तो वो p नॉट ही बन जाता है. तो हमने कहा कि अगर relative loading और vapor pressure निकालनी है तो P naught minus Ps upon P naught is equal to y upon x plus y. और अगर aqueous solution है तो फिर P naught किसके इक्वल है? Z के. तो वहां से निकालें. So this is how we can determine the value of relative loading of vapor pressure. इसके बारे में रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं. तो इसके लिए दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करते हैं बच्चों. सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये प्रॉब्लम हमें ऐसे दी हुई थी. द प्रॉब्लम इज द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of a non volatile organic compound is 745 at 373 Kelvin. तो हमें at 373 Kelvin, ये 373 Kelvin हमें कहीं यूज तो नहीं होना, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है. 373 Kelvin क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 373 केल्विन में तो हम ये कह देंगे कि P नॉट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर. तो बार एटमॉस्फेयर इज 760 मिलीमीटर. और उसके बाद उसने कहा कि जो हमने सॉल्यूशन बनाई है उसका वेपर प्रेशर कितना है? 745. तो Ps इज लेस देन P नॉट. ये बात क्लियर होगी कि ये रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा. 5% एक्वस सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान लेंगे. 5% है तो मतलब W2 कितना हो गया? 5 ग्राम्स, और W1 कितना हो गया? 95 ग्राम्स. अब हमें रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला आता है P नॉट माइनस Ps अपॉन P नॉट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू M2 अपॉन M1 विच इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1. हमें M2 निकालना है. यहाँ M1 कितना होगा बेटे? क्योंकि वाटर का सॉल्यूशन है तो 18 हो जाएगा. P नॉट की वैल्यू कितनी है? फिल कर देते हैं. 760 माइनस 745 अपॉन 760 इक्वल टू W2 कितना है? 5. M2 हमें निकालना है. ये M1 ऊपर चला जाएगा. 18 अपॉन 95. ये 760 में से 745 गए तो 15 अपॉन 760 इक्वल टू 5 अपॉन M2 इंटू 18 अपॉन 95. M2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? 5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 15 इंटू 95. इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5336 एंड इसको और काट देते हैं. 5 1 is 5, 5 9s are 45, 5 1 is 5, 5 5s are 25, 5. ये आ गया 6 into 152 upon 19. 19 8s are 8 में चला जाएगा तो 8 6 are 40. तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 40. बात समझ में आई? 373 था तो P नॉट 760 ले लिया और PS हमें दिया हुआ है. PS इज लेस देन P नॉट, मतलब लोडिंग और वेपर प्रेशर हो रहा है.
5% सोल्यूशन है तो W2 5 हो गया, W1 95 हो गया, M1 18 है, क्या को सोल्यूशन है यहाँ से वेरी सिंपल। ये दूसरा जो प्रॉब्लम है, ये जो ओस्टरॉल वॉकर मेथड मैंने आपको कराया उसके बेस पे है। कहता है करंट ऑफ ड्राई एयर अपने पास करनी होती है उसमें थ्रू ए सोल्यूशन। पहले सोल्यूशन में से पास करते हैं, फिर सॉल्वेंट में से पास। सोल्यूशन में से पास किया गया दैट कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूशन है उसकी कंपोजिशन दी हुई है। सोल्यूशन में हमें W2 दे दिया है 2.5 ग्राम और W1 दे दिया है 100 ग्राम। वाटर है तो M1 18 हो गया, इसका नाम X रखा हुआ है उसने। The loss of mass in the solution bulk, loss of mass in solution and loss of mass in solvent। आपको याद होगा दो अभी मैंने करवाया उसमें दो लेते हैं, इसको स्मॉल x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x जो है वो कितना है 1.25 और जो y है वो कितना है 0.05। मैंने आपको बताया था जो x होता है वो प्रोपोर्शनल होता है PS के और जो y होता है वो प्रोपोर्शनल होता है P0 माइनस PS के। तो अगर x प्लस y कर दें तो वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं P0 के। सबसे पहला उसने हमें काम कहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन द सोल्यूट। तो निकाल लेते हैं जी। हमें पता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज ऑलवेज इक्वल टू x2 व्हिच इज द मोल फ्रैक्शन। अब P0 माइनस PS अपॉन P0 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? P0 माइनस PS किसके प्रोपोर्शनल है y के और P0 किसके प्रोपोर्शनल है x प्लस y के। डिवाइड कर देते हैं तो ये y अपॉन x प्लस y इक्वल टू x2 व्हिच इज द मोल फ्रैक्शन। तो हम इसको y की वैल्यू पुट कर देते हैं। बेटे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y है 0.05 और x और y को अगर ऐड कर देते हैं ये बन जाएगा 1.3। ये x2 आ गया, मतलब x2 की वैल्यू आपकी आ गई 5/130 which is equal to 1/26। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन। आप इसको नोट कर सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर मास निकालो। अगर एक बार हमें मोल फ्रैक्शन का पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। x2 हमारे पास होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। x2 is equal to W2 upon M2 over W1 upon M1 plus W2 upon M2। पहले पुट कर दो जो दिए है। x2 हमने निकाला है 1/26, W2 कितना है 2.5, M2 आपने निकालना है, W1 कितना है 100 over 18 आ गया, 2.5 over M2 आ गया। यहां से आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। So this is how we can do the numerical problems related to relative loading। दो तरह के आते हैं, या तो एक परसेंटेज बेस जैसे आएंगे और हमें सीधा ही वैल्यू निकालना है, या फिर ओस्टरॉल वॉकर मेथड पे आएंगे जिसमें हमें ये देखना है कि लॉस ऑफ मास इन द सॉल्यूशन बल्ब इज प्रोपोर्शनल टू PS and loss of mass in the solvent bulb that is equal to the difference of vapor pressure of solvent and solute। I stop over here. This is the first qualitative property and we will start with the next qualitative property that is osmotic pressure। Till then prepare yourself, इसको अच्छे से कीजिए, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपकी बुक में दिए हैं अच्छे से कीजिए and if any problem you can ask me in the comment box also and thank you very much।